So welcome back to this session, students. Now we are going to learn how to solve questions based on linear equation in one variable. Here we are going to see your basic questions. In these basic questions, we are going to learn first how to simplify linear equations in one variable. Already अगर आपको linear equation in one variable दिए गए हैं तो उसको कैसे simplify करना है, and simple word problems. Okay, तो step by step शुरू करते हैं. You can see this is your first question of exam corner of module 2.1. Can you see this, everyone? Question number 1. Here you can see there are 6 questions given to you. From these 6 questions, I will show you 3 questions. Remaining 3 questions I will give you from homework. Okay. So from here, 6th one I'll show you here. Okay. 4th one you can do. 5th one, if I show you 2nd one, 5th one you can do it from homework. If I show you 4th one, 3rd you can do it from homework. And yes, so 1st, 3rd and 5th you can do it from homework. 2nd, 4th and 6th will do it from here. Don't worry about the date, Rohit. Now let us see second question. X minus 2 equal to 7. See, whenever you are going to have question of linear equation in one variable, just their title will be solve. Are you getting my point? आपको बस बोला जाएगा सॉल्व. सॉल्व का मतलब क्या होगा धत्री? आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, अब इसके लिए जस्ट हम ट्रांसपोर्टेशन का कंसेप्ट, यार राइट, ट्रांसपोर्टेशन का कंसेप्ट ही यूज करने वाले हैं. व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन? यू नो दैट अगर -2 उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, ये आपको ऑलरेडी पता है. बोलो पूर्वी, -2 उस तरफ जाएगा तो क्या होगा? Sir, it would be positive, means it would be +2. +2. थैंक यू पूर्वी. सो -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9. Isn't it easy? बोलो, isn't it easy, everyone? Easy peasy lemon squeezy. हाँ, yes, श्राव्या, ट्रांसपोजिशन, yes. नेक्स्ट, 4th क्वेश्चन, ट्रांसपोज का रूल एग्जैक्टली, राइट. ट्रांसपोज जाएगा तो क्या होगा? मैं ट्रांसपोर्ट बोल रहा हूँ कब से. ओके, सो मिस्टेक्स आर ऑलवेज गुड, सर्फ एक्सेल. ओके, सो नेक्स्ट ट्रांसपोज करेंगे पूजा. बोलो पूजा, यहाँ पे t/5 है, हमें सॉल्व करना है, मतलब वेरिएबल को वैल्यू फाइंड करनी है, हमें t की वैल्यू फाइंड करनी है. कैसे फाइंड करेंगे? किसको ट्रांसपोज करना पड़ेगा? सर t/5 को ट्रांसपोज करना पड़ेगा. मतलब t/5 में से किसको, या 5? सर राइट, चल मुझे ये बताओ, 5 डिवीजन में लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा? सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग सर. Okay, wait. 5 is in division. In left hand side, 5 is in division. So if 5 will go to right hand Yes, sir. side, it will be transformed or transformed in which position? It will be in product, it will be in addition, it will be in subtraction. So product. Very good. So 10 into 5. So therefore t equal to 3. Thank you, Pooja. So everyone clear with this? आसान है, बोलो. प्लस उधर जाएगा तो माइनस होगा, माइनस उधर जाएगा तो प्लस होगा, राइट. मल्टी प्रोडक्ट होगा, उधर जाएगा तो डिवीजन, डिवीजन होगा तो प्रोडक्ट. ओके, सो डैम इजी. यस, सो इट इज योर ट्रांसपोज और शिफ्टिंग और व्हाटएवर यू नेम इट. ये आपको ट्रांसपोज शिफ्टिंग कुछ नाम नहीं आता है, बस इधर से उधर जाके ऐसा होगा, फिर भी आप कर सकते हो. करेक्ट. नाउ 3/7 प्लस x इक्वल टू 17/7. बोलो किशोर, यहाँ पे हमें किसको ट्रांसपोज करना पड़ेगा? Yes, sir. Sir, we should we should transpose 3/7, sir. तो To 3 उधर जाएगा तो क्या होगा? sir, it will be -3/7. -3/7. So if you simplify, what you will get? Sir, x is equal to 14/7. Okay. And what is the simplification of 14/7? Sir, 2/1. 2/1 or simply 2. Okay. Is this clear, everyone? Students, आसान है, right? चलो जल्दी जल्दी नोट डाउन कर दो. नोट डाउन दिस क्विकली. So meanwhile, I will take your attendance. So see, let me explain you third question one more time. Third means sixth question particularly. Sixth question ना रोहित, जो sixth मैंने अभी यहाँ पे समझाया. See, 3/7 plus x equal to 17/7. Okay, Nandish.
So if 3/7 will go to that side, x will be 17/7 minus 3/7. You want this third one, रोहित. थर्ड तो पहले होमवर्क से सबको ट्राई करने दो ना रोहित. Please let everyone try, right, from home first. It is easy. Multiply करना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है. Yes, very good किशोर. चलो let us see question number 2 now. नहीं मान्यता, कल पहले ट्राई करो, राइट. फोर्थ वन क्या वापस समझाऊं? फोर्थ वन, वेट. सिक्स्थ वन, ओके. तो चलो सिक्स्थ वन में एक बार वापस समझाता हूँ, समझो. यहाँ पे मेन आपका पर्पस होना चाहिए, वेरिएबल की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, राइट. यू नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. अब यहाँ पे आपका जो वेरिएबल है दैट इज नथिंग बट एक्स, राइट. वेरिएबल के लिए आपके पास वहाँ पे एक्स वाई जेड वो सब आपको वन बाय वन फाइंड करना है. जैसे यहाँ पे आपका वेरिएबल है एक्स, तो एक्स के साथ जो भी होगा उसको आपको दूर करना है. यू हैव टू टेक इट अवे. Here we are having x in addition with 3/7. So I need to take 3/7 away, right, from x. So 3/7 को अगर मैं equal to के right hand side पे लेके जाऊँ, so it will be 17/7 minus 3/7 or not? Please give me some response. हाँ या ना? Okay. As for example, अगर आपने कुछ movies देखी होंगी, मुझे नहीं पता कि साउथ इंडियन मूवीज या और कोई मूवीज में इतना होता है कि नहीं, बट बॉलीवुड मूवीज में ऐसा बहुत होता है. जैसे हीरो कोई गलती करता है तो हीरो की मम्मी बोलती है, जा दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से, अपनी शक्ल कभी मत दिखाना. क्या आपने देखा है ऐसा सब कुछ? हाँ या ना? या फिर कभी हीरोइन हीरो पे गुस्सा हो जाती है, हीरो को किसी दूसरी हीरोइन के साथ देख लेती है, जा बात ही नहीं करनी मुझे तेरे साथ. ऐसा सब देखा है आपने? हाँ, अभी सेकंड पे मुझे ज्यादा रिस्पॉन्स मिले. अच्छी मूवीज नहीं देखते हो आप लोग. चलो, तो यहाँ पे जो 3/7 है, यहाँ पे सेम है. ये जो आपका एक्स है, वेदर वो हीरोइन है या हीरो की मम्मी है, जिसे दूर रहना है, राइट, उसे अकेले रहना है, तो बाकी सबको आपको भेज देना है. सो 3/7 को आप उस तरफ भेज रहे हो, दैट विल बी माइनस 3/7. 17 minus 3 will be 14/7. It is 2. Is this clear everyone now? Please give me some response. हाँ या ना? So you can remember this with the theme music of KGF. Thandani nane nani nano, right? I am very bad at singing. चलो, मेरी सिस्टर ने मुझे बोला ही था कि सर अब कभी गाना मत कहीं भी, रो पड़ेंगे लोग. ठीक. Is this clear? Next. Okay. So question number 2 first, second, third. समझो यहाँ पे. (3m = 5m minus 8/5), 2y plus 5/3 equal to 26/3 minus y. यहाँ पे आप देख सकते हो कि इक्वल टू के दोनों तरफ एक्सप्रेशंस हैं. ओके, दोनों तरफ वेरिएबल और एक्सप्रेशन है. जो ऊपर वाले क्वेश्चन थे, ऊपर वाले जो एक्सप्रेशन थे उसमें आपका वेरिएबल एक ही तरफ था. कैन यू से दिस? आइदर लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, आपका वेरिएबल एक ही तरफ था. अभी के जो इक्वेशन है उसमें वेरिएबल दोनों तरफ है. कैन यू सी इट? यस और नो? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. क्या वेरिएबल दोनों तरफ है? बोलो हाँ. अब इसमें मैं सिर्फ फर्स्ट वाला आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, सेकंड एंड थर्ड में आपको यहाँ पे करा रहा हूँ, समझना. तो सेकंड, 2y plus 5/3 is equal to 26/3 minus y. अब जब आपने मूवीज देखी होंगी तो मूवीज में आपको ये पता है कि जब हीरो को किसी विलन के पास जाना है तो वो पहले बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी बनाता है. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. जैसे आपकी फेवरेट मूवी का अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ केजीएफ, तो केजीएफ में यश की स्ट्रेटेजी क्या थी वो हमें लास्ट में ही पता चलता है. हाँ या ना? ओके. जब वो विलन आता है, विलन अपने स्टेच्यू का, जब वो क्या बोलते हैं, उसका कर्टेन निकाल देता है, पता चलता है कि वो उसका विलन का स्टेच्यू है. हाँ या ना? ये याद है, पता है आपको, राइट? विलन का नाम मुझे याद नहीं है, बट वो विलन को बुलाया जाता है कि आपके पापा का स्टेच्यू है, बट उसी का स्टेच्यू निकलता है. फिर वहां पे यश पूरी स्ट्रेटेजी बना देता है कि अब तो मैं इस विलन को खत्म करूंगा, तब जाके फिर मेरा भी ऐसा ही होगा. हाँ या ना? हाँ. संतोष इज टेलिंग गरुड़ा. हाँ, यस, गरुड़ा. तो अब वो आपको याद है, वहां पे यश अपनी स्ट्रेटेजी बनाता है, हमें पता नहीं चलता है, हमें मूवी के एंड में पता चलता है. जब यश गरुड़ा को मारता है तब पता चलता है, ओके यस दिस इज द स्ट्रेटेजी.
Yes, few students are telling yes sir. Marvel में भी, हाँ, जब अवेंजर्स जाते हैं थानोस से बदला लेने के लिए, तूने हमारे आधे लोगों को मारा, हम तेरी पूरी आर्मी को मार डालेंगे। तो उसके लिए जब वो पूरी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, राइट, तो पहले आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, तब जाके आप विलन को मार पाओगे या फिर जीत पाओगे। सो इन सेम वे यहाँ पे भी हमें एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। अब यहाँ पे हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, समझो एवरीवन। हमारे पास वेरिएबल दोनों तरफ है। हमारी स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि कोई भी एक तरफ वेरिएबल को कर देंगे, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, और नंबर्स को दूसरे तरफ कर देंगे। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। ऑल वेरिएबल्स विल बी ऑन वन साइड, all numbers will be on another side, all heroes will be on one side, all villains will be on other side. Then hero can easily kill the villain. Yes or no? Is this clear everyone? हाँ या ना? Right? हाँ, तो चलो करते हैं। अब माइनस वाई इस तरफ आएगा, 2y ऑलरेडी है। माइनस वाई जब इस तरफ आएगा किशोर, तो क्या होगा? व्हेन माइनस वाई विल बी ट्रांसपोर्ट टू दिस साइड, लेफ्ट हैंड साइड, किशोर, व्हाट विल हैपन? Yes, sir. Sir, it will become plus y. वेरी गुड किशोर। 26/3 तो वहीं पे है, 5/3 उधर जाएगा तो क्या होगा? Sir, minus 5/3. थैंक यू किशोर। नाउ लेट मी सिंप्लीफाई दिस। सो 2y प्लस y आपका क्या हो जाएगा? 3y। 26/3 माइनस 5/3, 26 माइनस 5, 21/3। सो इफ यू मेक y एज सब्जेक्ट, अब 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में, 21/3 into 3। So y will be equal to either, नहीं तो आप पहले भी कर सकते हो ना, 3 7s are 21, yes or no? I think that will be easier. So y will be 7/3. Easy, बोलो हाँ या ना? So y is 7/3. This is our strategy for KGF3. Clear everyone? Please give me some response. पूर्वी, मधुर, श्राव्या, रूपा, आसान है एकदम? Easy, yes. समर्थ, great. Only 7. श्राव्या is telling, wait, 26 माइनस 5, 21/3, हाँ वो ओनली 7, बट उसके बाद जब 3 जाएगा डिनोमिनेटर में तो 7/3 हो जाएगा ना श्राव्य? दिस विल बी 3y इक्वल टू 7 ना, राइट? सो व्हेन 3 विल गो टू दैट साइड, इट विल बी 7/3, राइट? समर्थ तो अच्छे से नाच भी रहा है, ओके समर्थ। सो यू विल बी डांसर इन KGF3, राइट समर्थ? यस और नो? ऐसे वीडियो ऑफ नहीं करना है समर्थ, अभी हमारा इंटरनेशनल डांस डे गया है 2-3 days बैक। You should dance. Yes, come on. Yeah. Now, third equation, students. चलो third equation में ध्यान दो। 2x into x plus 3 is equal to 2x into x minus 5 plus 5. Okay. अब यहाँ पे if you see the 3 variable कहाँ पे है? Can you tell me? वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड पे भी है, राइट हैंड साइड पे भी है, द 3, यस और नो? डोंट वरी द 3। बोलो अमीशा, वेरिएबल दोनों तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी है, राइट हैंड साइड पे भी है, हाँ या ना? ओके, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे अमीशा? सर हम लोग पहले 2x तो x स्क्वायर से मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। एक मिनट, हाँ, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, फिर ट्रांसपोज करेंगे, राइट? हाँ। Okay, so if I am multiplying 2x with both the terms here, 2x with both the terms, let us see 2x into x, what I will get? 2x square. Very good. 2x into 3, 6x. here 2x into x, 2x square minus 10x plus, thank you अमीशा। चलो अब यहाँ पे आगे दिव्येश को हम चांस देंगे। दिव्येश, can you tell me the next step, दिव्येश? दिव्येश, are you there? Okay, दिव्येश सो गया है। दिव्येश के दोस्त कौन है? उसको जगाओ जगाओ, जल्दी चाय पिलाओ, कुछ भी करो, इम्यूनिटी उसकी बूस्ट करो। ऐसे सोता रहेगा तो कैसे चलेगा? कोरोना से पहले स्टडी किल कर देगी। यस रागिनी, हाँ मान्यता वापस समझाऊंगा। चलो रागिनी नेक्स्ट। Yeah, sir. So we can take 2x square and minus 10x to the left side. Yes, all variables will be on left side. सारे हीरो को एक तरफ लाते हैं। So already we are having on left hand side 2x square plus 6x
if this 2x square will come here, it will be minus 2x square. This minus 10x will come here, it will be plus 10x. This is equal to 5, correct? Yes or no? Then next, plus 2x square minus 2x square cancel. 6x plus 10x, 16x equal to 5. अब 16x equal to 5 हो गया, उसके बाद आपका x क्या हो जाएगा? Can I say x is nothing but 5 by 16? x आपका 5 by 16 हो जाएगा. Easy peasy lemon squeezy. हाँ या ना? A few students are telling sir it is easier than squeezing the lemon. और ये वही स्टूडेंट्स बोल रहे हैं जिन्होंने अभी तक मम्मी को कभी हेल्प नहीं किया लेमन स्क्वीज कैसे करना है. क्या आपने हेल्प किया है मम्मी को लेमन स्क्वीज करने में? यस, ओके. हाँ, वन स्टूडेंट इज आस्किंग सर व्हाट इज लेमन. वेरी गुड, शाबाश, एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. नाउ समझो यहाँ पे. हाँ, यस सौम्या, आई विल कम टू यू, जस्ट अ मिनट. ये समझाता हूँ पहले, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस, फिर वन बाय वन करते हैं. 2x इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 2x इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 5. हमने पहले 2x को सिंप्लीफाई कर दिया, सो 2x इंटू एक्स विल बिकेम x 2x स्क्वायर बिकॉज x इंटू एक्स विल बी x स्क्वायर. 2x इंटू 3 बिकेम 6x. अगेन 2x into x 2x square, 2x into 5 minus 10x. If this 2x square will come to left hand side minus 2x square, minus 10x will come to left hand side plus 10x. 2x square minus 2x square 0, 6 plus 10, 16x equal to 5, x is equal to 5 by 16. Is this clear everyone? ये आप सबको clear है? इसमें किसी को डाउट है? Anyone is having doubt in this? No? Great, easy. Okay. हाँ, अभी आप फटाफट लिख दो. आई एम गिविंग यू टाइम, जल्दी जल्दी. So let us start now word problem, students. In this word problem you can see the next that we are having. Just a minute, in your homework I am getting this. Okay. Fine. Question number 3. A number consists of 2-digit number whose sum is 8. If 18 is added to the number, its digits are reversed. Find the number. Okay. अब समझो यहाँ पे 2-digit number भैया. Then we are going to see 3-digit number. But in class 8, 2-digit number enough. In class 9, 2-digit number enough. In class 10, 2-digit number enough. तो फिर आप पूछोगे सर 3-digit number कब आएगा? 3-digit number आएगा आपकी NTSC, NSTSC, ओलंपियाड, ये सारी एग्जाम में. Is this clear everyone? बोलो हाँ, राइट. एंड 10th में भी आपको थोड़ा मिल सकता है. जैसा कि मैंने आपको बोला था, हर वर्ड प्रॉब्लम से हम कुछ ना कुछ नया सीखेंगे एंड कुछ ना कुछ लिखते जाएंगे फॉर्मूला बुक में. तो पहले फॉर्मूला बुक में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 2-digit नंबर वाले प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. ओके, चलो मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, जब कोई भी 2-digit नंबर होता है, व्हेनेवर वी आर हैविंग एनी 2-digit नंबर, 2-digit नंबर में कौन कौन से डिजिट होते हैं? यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट, हंड्रेड्स डिजिट, इस तरीके से आप क्या बोल सकते हो? टेल मी, 2-digit में कौन कौन से डिजिट्स होते हैं? बोलो दत्री. Yes, unit and tens. Yes or no? Right. As for example, suppose I am writing 23, 46, 98. तो इन सब में एक हमारे पास होता है यूनिट डिजिट, एक हमारे पास होता है टेंस डिजिट. टेंस डिजिट, यूनिट्स डिजिट. ओके. Now what is the meaning of 23? Okay, चलो जब हम 23 बोलते हैं उसका नाम में ही है कुछ 23. Isn't it 20 plus 3? 23 का मतलब 20 plus 3 है कि नहीं? Please give me some response. हाँ या ना? युक्ति, am I correct? पूजा, धत्री, रागिनी, सिद्धार्थ, रूपा, अमीशा, clear है? 23, 20 plus 3. In the same way, what can I write? 46. Isn't it 40 plus 6? Right?
98 isn't it 90 plus 8, इसीलिए तो उसका नाम 98 है, इसका 46 और इसका 23. Now what can you tell about 23? चलो रागिनी, जो 20 है क्या मैं उसे 2 into 10 लिख सकता हूँ? Yes, sir. ओके. फिर जो 40 है उसे 4 into 10 लिख सकता हूँ. Yes, sir. सेम पे 90 को 9. Plus 6, sir. Yes, here 6 and here 8. Thank you, Ragini. So it is nothing but your tens digit multiply by 10 plus units digit. Am I correct? Hi, Anna. Can I say that any 2-digit number can be written as 10 times tens digit number 10 times tens digit plus units digit. You got this everyone? क्या पहले ये पता चला? You can tell me yes अगर ये पता चला. You can tell me no अगर नहीं पता चला. कोई भी 2 डिजिट नंबर को मैं लिख सकता हूँ 10 times tens digit number plus 1 time units digit number. Similarly अगर यहीं पे 3 डिजिट नंबर होता, so 100 times hundredths digit number or 100 times the digit which is at hundredths place, or you can simply write 100 times hundredths digit plus 10 times tens digit plus units digit. Is this clear? Note down this quickly. ये कहाँ पे लिखना है आपको? फॉर्मूला बुक में. You have to note down this in formula book. Do it quick. Right. संतोष आपका होमवर्क चेक कर रहा हूँ meanwhile.